Hello everyone, this is Deepan Ajogi and welcome you all to my YouTube channel Why Mathematics. Okay, today I am going to start a new series for your MSc Mathematics. In this series, I am going to discuss all the topics in your syllabus. Okay, and this series is going to be in bilingual. That is mathematics. That is Hindi as well as English. Okay, so first we are going to start our first topic or say paper, which is real analysis. Okay, real analysis. Basically, you have studied real analysis in your BSc third year. है Okay, so today we are going to start Unit 1. यूनिट 1 में आपके पहला है रीमान spelling mistake, sorry for that. Riemann Stieltjes इंटीग्रेशन. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रीमान स्टिल्टजियस इंटीग्रेशन, और शॉर्ट में बोलेंगे हम आरएस इंटीग्रेशन. ओके, ये पढ़ने वाले. इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ आरएस इंटीग्रेशन, एंड देन इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन and integration. Okay, and the last is fundamental theorem of calculus. Fundamental theorem of calculus. Okay, so let's start the first topic, that is, name it topic 1, that is Riemann integration. Okay, it is your first topic, integration, sir, but our topic is Riemann Stieltjes integration. So before you know RS integration, you have to know what is Riemann integration. Okay, अगर आपको Riemann integration नहीं आता है तो आप RS integration नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो RS integration है, जो Riemann Stieltjes integration है, वो Riemann integration का ही एक extended version है. Okay, and also I assuming that you all know the basic of real analysis, that is supremum, infimum, bounded, unbounded, है ना, continuity, differentiability. You all know this. If you don't know this, just stay with us. Soon we are launching a new series for your basics. Okay, so basically, what is your Riemann integration? Basically, integration is nothing. It's just an area under a curve. Okay, let's say we have this area over this curve. You are seeing this. This area is called integration. Okay, fx, and this curve is fx. Okay, so this is called integration. Or you can say Riemann integration. Okay, how can I define this? So let's define this. Okay, let's suppose the function. You all know function. What is function? If you don't know, let me know in the comment box. I will help you out to know what is the integration. Okay, so let's start. What is Riemann integration? Then we start Riemann Stieltjes integration. Okay, so what is Riemann integration? Let us consider function f a to b to r be a bounded
function. Okay, and P be the partition, P be the partition of A to B. Okay, I hope you all know what is partition. If you don't know, I will write here. Okay, what is partition? Partition is the set of point which divides the interval into subintervals. ओके, व्हाट इज पार्टीशन? तो देखो पार्टीशन क्या होता है बताता हूँ आपको हिंदी में। एक हम इंटरवल कंसिडर करते हैं, लेट से 2 to 5। ओके, एक इंटरवल है, इसका पार्टीशन क्या होगा? तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे कि भाई 2, 3, 4, 5। तो ये जो पॉइंट्स है ये इस इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। कैसे? देखो ऐसे 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5। सही है? हाँ, दिस इज कॉल्ड पार्टीशन। ओके, लेट मी erase this now। you are able to know what is partition. Okay, so I can write here P is equals to x naught, which is equals to this first term, that is A, then x1, x2, and in here between एक interval लेते हैं, that is called ith interval। बीच में एक ith partition बना रहा हूँ मैं, x3 is not here, and मैंने यहाँ पर xn पॉइंट ले लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पार्टीशन डिफाइन कर दिया मैंने। तो जैसे मैंने पार्टीशन डिफाइन किया, इसके हिसाब से जो ए बी हमारा क्लोज इंटरवल है, ये छोटे छोटे सब इंटरवल दैट इज ऐसे डिवाइड हो जाते हो। कैसे? A to x1, x1 to x2, एंड xi-1 से xi, xn-1 से xn हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें एक काम करना है। क्या करना है? अब मैं बताऊँ एक बात, एक फंक्शन जो हमने लिया अभी a to b from R is a bounded, okay, on AB। That means it is also bounded on its all interval सब इंटरवल्स, है ना। ये अपने सारे सब इंटरवल पे बाउंडेड होगा ही होगा वही होगा। ठीक है, तो वही बात बोलने वाला हूँ कि फंक्शन जो बाउंडेड है उसके सब इंटरवल पे भी बाउंडेड रहेगा। ठीक है, बाउंडेड रहेगा मतलब इसके बाउंड्री पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाउंड्री पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कि मैं बता रहा हूँ बाउंडेड क्या होता है फंक्शन। व्हेन इज फंक्शन बाउंडेड? f is said to be bounded if its range set is bounded। ओके, अगर इसकी रेंज सेट बाउंडेड है तो ये फंक्शन भी बाउंडेड होगा, तभी बाउंडेड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो अगर ये फंक्शन ए से बी पे बाउंडेड है तो ऑब्वियसली ये इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स इंटरवल्स पे भी बाउंडेड हो ही होगा। एम आई राइट? है ना। देन इट्स
बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ दिस सेट ऑल्सो एग्जिस्ट, है ना। तो वही बात मैं करने वाला हूँ। क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे हम, चालू कर रहे हैं ना प्रूफ, ठीक है। तो लेट कंसीडर m, what is m? It's just a constant which is supremum of fx such that x belongs to this ab, am I right? Any problem? ये क्या है, इसके जो रेंज सेट है, इसका जो रेंज सेट है उसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड m, ओके। एंड वन मोर एलिमेंट वी आर कंसीडरिंग हियर दैट इज m, जो कि है infimum of fx such that x belongs to a to b. Any problem? Not? Okay. Let's move on. ठीक है, ये क्या है, ये सबसे छोटा एलिमेंट है उस सेट का, ये सबसे बड़ा एलिमेंट है ना। सुप्रीमम क्या होता है, सबसे बड़ा एलिमेंट, और इन्फिमम होता है सबसे छोटा एलिमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मैं ये करना चाहता हूँ, एक जो हमने बीच में एक इंटरवल लिया, अब हम देखो सर हर इंटरवल के लिए तो चेक कर नहीं पाएंगे, तो मैं इन जनरल एक इंटरवल लेता हूँ दैट इज ith इंटरवल। इसको हम नाम ले देते हैं, कहाँ शुरू होगा, xi-1 से xi। तो हम सिर्फ अभी इस पे बात करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इस ith इंटरवल पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी इस इंटरवल पे mi कंसिडर करने वाला हूँ। mi क्या है, तो mi इज द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट fx such that x belongs to xi-1 to xi। इस सेट का सुप्रीमम है। बेसिकली हमने ये लिया था पूरे इंटरवल पे, हम उसके कोई सब इंटरवल ले लिया जिसको हमने ith नाम दिया, उसका सुप्रीमम ले रहे। सिमिलरली हम mi ले लेंगे। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज इन्फिमम एंड दिस इज ऑल्सो fx such that x belongs to xi-1 से xi। ओके, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, नाउ ये ले लिया मैंने। अब आपको पता होगा, अगर आपने सेट थोड़ी अच्छे से पढ़ी होगी आपकी बीएससी में, तो देखो ये है इस ए बी का, यानी कि इस ए बी का इन्फिमम, यानी ए बी का सबसे छोटा एलिमेंट ए बी, दैट मीन्स एफ एक्स का जो रेंज सेट आएगा ए बी के कॉरस्पॉन्डेंस उसका सबसे छोटा, एंड जो एम है ये उसका बड़ा है। तो जो एम आई है, सॉरी, कैपिटल एम आई वो इससे छोटा होगा, यहाँ पे बराबर होता है ये एम आई। कैसे होगा, लेट एग्जांपल लेते हैं। मैं फंक्शन कंसीडर करता हूँ, लेट से एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स लेते हैं, सिंपल है ना, इजी होगा, ठीक है। और रेंज से डिफाइंड है मेरा 1 to 5, और इसका ith इंटरवल लेता हूँ मैं 2 to 3, कोई बीच में एक इंटरवल ले लिया मैंने। तो इसका रेंज सेट का इन्फिमम 1 होगा, और इसका जो सुप्रीम होगा वो होगा 5, एंड इस इंटरवल का जो होगा वो इन्फिमम से बड़ा होगा, उससे छोटा होगा। एम आई राइट, सॉरी, छोटे होगा, वी नो दिस, एंड इससे बड़े होगा, है ना। तो मैं ये करता हूँ, अब मैंने आपको बताया, इस हिसाब से हमने लिखा है, सही है, ठीक है, ये लिख ली। एक बात करते हैं हम आगे, क्या बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं कि भाई हमने पार्टीशन ले लिया, ठीक है, उसके बाद हमने एम आई और स्मॉल एम आई डिफाइन कर लिया, उसमें एक रिलेशन बता दिया मैं आपको, दैट इज रिलेशन, ठीक है। इस रिलेशन को आप कभी यूज़ करेंगे बाद में, अगले जब टर्म पढ़ेंगे। वैसे इसमें इसका मतलब नहीं है, यूज़ नहीं है, इसलिए जब रीमान इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तब इसका जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब मैं एक नई टर्म डिफाइन करने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड अपर सम, अपर रीमान सम। ओके, दिस इज अ सब नहीं सम, ठीक है। क्या होता है, नथिंग,
एक लेते हम इंटीग्रेशन आई टू लेके 1 एंड एम आई इंटू डेल्टा एक्स आई। सर एम आई समझ में आ रहा है कि आई डबल का, सॉरी हम क्या करना बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे पास हमने एक आई इंटरवल लिया था, ये आप देख सकते हो, अभी हमने आई इंटरवल लिया था। वो आई इंटरवल एक छोटा सा इंटरवल है, उस पे एरिया अपर सम जो होगा वो कम होगा, ठीक है भाई। हमें तो पूरा चाहिए ना, तो मैं ये करता हूँ सारे को आई आई मान के और सारे के सारे एम आई को मैं जोड़ दूँ तो मुझे एरिया मिल जाएगा। अगर आपको बताऊं कि अपर सम क्या होता है ग्राफिकली, देखो बताता हूँ मैं। यहाँ ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, और ये फंक्शन ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ए से लेके बी तक जा रहा है, दैट्स एक्स एंड दिस इज वाई। ओके, मैंने इसका एक ए लिया, अपर सम लेना है, तो मैंने ये किया। अब ये एक रैंडम शेप है, इसका कोई एरिया मुझे निकालना आता नहीं, तो मैं करता हूँ, मैं इस लाइन को पूरा करके एक स्क्वायर बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? स्क्वायर। तो ये जो बन जाए स्क्वायर। अब मैंने इसको एक इंटरवल लिया बीच में, कोई सा, तो लेट्स से वे हैव एक्स आई माइनस वन से, मुझे नहीं पता, मैं कोई सा भी आर्बिट्री ले लेता हूँ, रेंडम टोटल है मैंने इंटरवल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये दूरी कितनी होगी, दैट इज एक्स आई माइनस वन होगी। इसी को हमने नाम दिया है डेल्टा एक्स आई, ओके। और ये क्या हुआ, ये फंक्शन की वैल्यू है उस जगह पे, तो ये क्या होगी, दैट इज एफ एक्स। और ये क्या होगी, इस टाइम पे जो फंक्शन सबसे ऊंचा इस इंटरवल में, वहाँ की वैल्यू भले वो फंक्शन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, दैट इज एम आई ले रखा हमने पहले से ही, यहाँ पर देखिए ले रखा है, तो वही लिया। अब मैंने इसका ये चलो मान निकाल लिया, ठीक, इस पूरे का, लेकिन ये तो इतनी का है, मुझे तो पूरे का चाहिए, तो मैं छोटे छोटे सारे इंटर्स बना के इन सबको ऐड कर दूंगा, इसका एरिया आ जाएगा। एम आई राइट? ठीक है, तो एम आई क्या हो गया, समझ में आ गया, और डेल्टा एक्स क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम अपर रीमान सब, ठीक है। इसको हम लिखते हैं यूपीएफ, किसके रिस्पेक्ट में निकाला उसकी बात हो रही है, यूपीएफ, ठीक है। अब बात करने वाले हम लोअर रीमान सम, क्या होगा, सेम बात है, क्या है, बस लोअर मतलब कम वाला बोलो तो स्मॉल एम आई एंड डेल्टा एक्स आई। यहाँ देखते हो क्या होता है लोअर सम, ये फंक्शन अगेन वो बना दिया मैंने, एंड दिस ए दिस इज बी, और ये कोई हमारा एक्स आई से लेके माइनस वन से लेके एक्स आई तक का कोई इंटरवल है, इसमें मेरे को निकालना है, तो मैं इस बार यहाँ तक ही निकालूंगा। मुझे तो सर इस शेप का मुझे कोई पता ही नहीं है, मैं तो इसी शेप के बारे में जानता हूँ, रेक्टेंगल के बारे में, इसका एरिया क्या होगा। तो ये क्या है, इसकी कम से कम वैल्यू इस फंक्शन की यहाँ पर है ना, बेसिकली इंग्लिश फंक्शन है इसलिए कम वैल्यू यहाँ मिल रही है, लेकिन इसकी कम वैल्यू कभी भी मिल सकती है, ठीक है। ये इसकी हाइट कितनी हो गई, एफ एक्स एट एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के बीच में, और ये क्या हो जाएगा, ये भाई एक्स आई माइनस वन विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई, है ना। तो ये क्या हो गया, लोअर सम नीचे तक ही लेते हैं, अपर सम ऊपर लेते हैं, ये वाला इसमें अपर सम में काउंट होता है और इसमें यहीं तक होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको हम डिनोट करते हैं एल पी एफ, और हमने इसको जोड़ा क्यों है आपको पता है, क्योंकि हमने इसके लिए निकाला था, हमको सारे के लिए निकालना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। अब ये रिमान फंक्शन सॉरी ओके, अब मैं आपको बताने वाला अगली टर्म, दैट इज अपर रीमान इंटीग्रल, मतलब ऐसे करो आप, जो आपने रीमान सम निकाले, हमने एक पार्टीशन के लिए निकाले, अब इतने बहुत सारे पार्टीशन भी हो सकते हैं, मेरी पार्टीशन ना दे यार, एक चीज की मैं कितने पार्टीशन कर सकता हूँ, इनफाइनाइट में नहीं, जैसे एग्जांपल 1 to 5 लिया मैंने, इससे कितने पार्टीशन कर सकता हूँ भाई, पहला किया मैंने 1 2 3 4 5, दूसरा कैसा हो सकता है, तो भाई 1
1/2, उसके बाद 2, 3/2, that is 3 by not 3/2, 5/2, 3, 7/2, है ना। ऐसे मैं चाहूँ जितने इंटरवल्स पार्टीशन निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, वही किया। भाई एक पार्टीशन के लिए इतना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, उन सारे पार्टीशन में से सबसे छोटा है, जिस पार्टीशन का सबसे छोटा अपर सम होगा वो मैं ले लेता हूँ। दैट इज infimum of UPF such that P belongs to set of all partition। ए के जितने भी पार्टीशन हैं उनमें से अगर मैं P लेता हूँ और उसका जो अपर सम लेता हूँ, तो उन सारे अपर सम में से जो सबसे छोटा होगा दैट इज कॉल्ड अपर रीमान इंटीग्रल, और इसको डिनोट करते हैं ए बी बार एफ एक्स डी एक्स। ओके, समझ में क्या होगा, इन्फिमम UPF such that P belongs to रो ए बी। रो क्या है, ये फैमिली ऑफ पार्टीशन है ना, सारे पार्टीशन फैमिली। अगला जो है हमारा वो है लोअर रीमान इंटीग्रल। क्या होगा भैया, अब हम क्या करेंगे, सबसे जो फंक्शन है ये लोअर सम का, ये क्या होगा, सबसे बड़ा लोअर सम सारे पार्टीशन का। क्या, सबसे बड़ा लोअर सम ऑल द पार्टीशन दैट वी हैव क्रिएटेड, उन सबका सबसे बड़ा लोअर सम क्या होना चाहिए, लोअर सम सबसे बड़ा लेना है और अपर सम सबसे छोटा लेना है ना। P बिलोंग्स टू पार्टीशन, सॉरी फंक्शन लिख दिया मैंने, ठीक है। वो क्या होगा, रो A to B। ओके, दैट इज डिनोटेड बाय A bar B fx dx, that is supremum of LPF रो A to B है ना। अब एक फंक्शन रीमान इंटीग्रल कब होगा, जब ये वाला, भाई देखो, जब ये वाला और ये वाला सेम हो जाए, क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो जाए तो होगा। क्यों होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये फंक्शन लिया हमने, ये निकाला, ये निकाला, और इसी फंक्शन के लिए मैं ऊपर बनाया था, सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन गया। देखो मैं एक ये फंक्शन बनाया मैंने, और यहाँ पर मैंने एक बनाया, इसका मुझे ये निकालना है, ठीक है। अब देखो, अगर रीमान लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल बराबर आ जाते हैं, तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस जो फोकट का आ रहा है ये खत्म हो जाएगा। भाई रीमान इंटीग्रल यहाँ तक, लोअर यहाँ तक होता है, अपर होता है, अगर दोनों बराबर आ गए तो करीबन करीबन इसके पास आ जाएंगे। कहाँ आएंगे, इसके पास, एंड दैट एरिया बिकम वेरी वेरी एक्सैक्ट। ओके, दैट मीन्स ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर एफ इज रीमान, सॉरी ठीक हो गई, रीमान इंटीग्रेबल इफ, भाई जिसका, सॉरी फंक्शन नहीं लेना था, इसका जो इंटीग्रेशन है कौन सा वाला, लोअर एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू अपर वाला एफ एक्स डी एक्स इसका हो गया, तो ये रीमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी ए टू बी एफ एक्स सच दैट एफ एक्स डी एक्स। ओके, ये बराबर होगा, उसकी रीमान इंटीग्रल ये आ जाएगा आपका एफ एक्स डी एक्स। ओके, उसके बाद आपने पढ़ा ही होगा कि भाई साहब पार्टीशन क्या होता है, सॉरी रिफाइनमेंट क्या होता है, वन नोट मिस्टेक हो गया था, ठीक है। हम बात कर रहे थे इसकी, सॉरी नॉट पार्टीशन, वी आर टॉकिंग अबाउट
मिर्जा भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट रिफाइनमेंट ना, रिफाइनमेंट। ओके, तो क्या बात कर रहे थे रिफाइनमेंट की, कि अगर हमारे पास कोई पार्टीशन है, से वी हैव x0, x1, x2 एंड xi-1 से xi एंड सो ऑन टिल xn, है ना। तो हमने जो पार्टीशन किया है इसके अंदर मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ, तो उसका रिफाइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको डिनोट करते हैं एक्स्ट्रा, ये पार्टीशन का रिफाइनमेंट कब होगा, जब मैं इसके बीच में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करता हूँ, लेट्स से वी एंटरिंग x स्टार। तो ये क्या हो गया इसका पार्टीशन, मतलब कि एक से ज़्यादा पॉइंट को अगर हम इंसर्ट कर देते हैं किसी पार्टीशन में तो उसका रिफाइनमेंट होता है। ठीक है, रिफाइनमेंट से फर्क क्या पड़ता है, तो बताता हूँ। जो आपका अपर सम है मिर्जा आफ्टर रिफाइनमेंट, है ना, आफ्टर रिफाइनमेंट आपका जो अपर सम है वो हो जाता है कम। क्या हो जाता है, UPF इज ग्रेटर देन UP स्टार F। ओके, एंड जो आपका लोअर सम है बढ़ता है। कैसे बढ़ता है मैं बताता हूँ आपको। देखो आप समझो, ये आपका एक फंक्शन है और ये आपका एक ग्राफ है। मैं बात करता हूँ पहले आपके अपर सम की, थोड़ा टेढ़ा मेरा मुझे समझ लेना ना। अभी आपका अपर सम कितना है, ये इतना आ रहा है। ठीक है, मैंने इसके बीच में रिफाइनमेंट कर दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ तक ही करना है इंटीग्रेशन, ये निकलना है। जो ये एरिया ये एक्स्ट्रा वाला है ये आपके एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि एग्जिट एरिया लग जाएगा। तो यानी कि अपर सम कम हुआ, पहले पूरा आ रहा था अब इतने आ रहा है, पहले पूरा आ रहा था अब इतना कम पड़ गया, और ये वाला कम पड़ गया, और बस सिर्फ ये वाला और ये वाला आ रहा है। ठीक है, और अगर आप बात करो लोअर सम की, तो बढ़िया कैसे बताता हूँ मैं आपको, सॉरी ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये लीजिए आपका, यहाँ से मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ, ये मैंने इसका एक इंटरवल ले लिया आयत। अब इसका लोअर सम क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर रिफाइनमेंट करता हूँ तो लेट से ये मैं रिफाइन कर दिया, रिफाइनमेंट का एक पॉइंट इसको ना, यानी कि एक एक्स्ट्रा इंटरवल बन रहा है। ठीक है, अब मैं इसका ये निकालूंगा तो मुझे सिर्फ पहले तो मुझे यहाँ तक एरिया मिला था पूरा, एम आई राइट, और अब मुझे इतना एरिया एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट मीन्स मेरे पास ज़्यादा एरिया आ रहा है। क्रैश हो गया, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हो गया, तो क्या होगा, इतना एरिया आपके एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट के बाद, तो यानी कि लोअर सम बढ़ रहा है अपर सम कम हो रहा है। तो देखो आज हम ये एंड करते हैं क्योंकि थोड़ा सा वन और नाटक आ रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम SR इंटीग्रेशन, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, यार ठीक है, अगले बार में हम RS इंटीग्रेशन चालू कर देंगे। हाँ ठीक है, क्या है बेसिकली कुछ नहीं है, अगर आपने रीमान इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ रखा है समझ लो आपका हो गया कंप्लीट है, काम पूरा कंप्लीट है। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल से एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड करेंगे, और हाँ है ना, ऐड करेंगे और आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, और कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू।